मैं कहती हूँ वेलकम गुरु नरेंद्र जी। आपको तो गुरु नाम सूट कर गया है। टाइटल सूट्स यू। तो बिकॉज आप कितना ज्ञान देते हो सबको। यू टीच अस सो मेनी थिंग्स एंड वी आर वेरी लकी दैट यू आर हैड द सेकंड एपिसोड टुडे हमारा साथ। हमारा लास्ट वीक हमने शुरू किया था अबाउट कर्म योग एंड देन भक्ति योग एंड देन नेक्स्ट टाइम विल बी द ज्ञान योग एंड देन उसके बाद में योगा ऑफ डिस्पॉन्डेंसी करेंगे विच इज़ उसका नाम मैं भूल गई हूँ। क्या है नाम नंदा जी? द व्हाट इज़ उसका नाम? एनीवे योगा ऑफ डिस्पॉन्डेंसी, दैट्स द लास्ट one, but this is a series of four, and then we did the first one last week. So we decided to continue because ऐसे बीच में छोड़ दो then it becomes a long gap. So मैं चाहती हूँ कि नरेंद्र जी हमको सारा सेकंड वन एक्सप्लेन करेंगे आज भक्ति योग के बारे में क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, व्हाट शुड वी डू एंड हाउ शुड वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स। जैसे वो कहते हैं कि मंदिर और गुरुद्वारे में सब जाते ही हैं, पर what do you get out of it, what do you learn, so this is what we have to stress, and Narinder ji is going to explain to us so much. Thank you so much for joining, Narinder ji. And Thank you, Viraji. Thank you very much. Great to have you with Dil Diyan Galla. And I know that I just want to say that last week was a very, very busy week because I had a lot of very important things in the family going on. एक तो मेरी बेटी का बर्थडे था, एक मेरे ग्रैंडसन का बैप्टिज्म था, then birthday celebration, then outing with some friends special, and of course हमारे प्रोग्राम होते हैं। बीच में कितने प्रोग्राम थे मैं जा नहीं सकी because in one day how many places can you go? So this week was purely basically all family. When the family comes, the children come, the grandkids come, they stay with you. So so my mind is a little bit today, a little bit distracted, and busy रहे तो बड़ा some things you have to cancel out. You can't go everywhere. तो ये भी है. So but I just want to I'm very happy that we had a good celebrations for all the family, and a lot of people also had same time birthday भी थे. हमारे friend गौतम जी का भी था पिछले हफ्ते. I forgot to mention. Then my daughter the next day. आपके grandkids का भी अक्टूबर में होता है. आपका तो beginning में था. I remember. And I think tomorrow, if I'm not mistaken, Rekha ji ka bhi hai birthday. So a lot of people to cover, a lot of friends. Sometimes we cannot celebrate each and every person, बड़ा मुश्किल हो जाता है. But our wishes and thoughts and a lot of blessings are with everyone. But anyway, let's शुरू करते हैं आज. As usual, we want to pray for the world. A lot of crazy things are happening. I didn't realize that Sudan में भी बहुत कुछ हो रहा है जो इतनी न्यूज़ में नहीं आता. And the children, 19 million children are displaced. They have no school to go to. And I was reading the New York Times yesterday, तो इसमें वो लिखा हुआ था, तो it's very sad. And of course, Middle East में तो आपको मालूम ही है that instead of getting better, things are getting worse. So we really need everybody's prayers, good thoughts, and सब करेंगे prayer. Let's hope somebody listens, ऊपर वाला सुनेगा. और हमारे prayer में बहुत ताकत होती है, lot of power. And so let's all join with Narendra ji and pray. Thank you so much, Narendra ji. Thank you, Viraji. Thank you for running this program. And as per your guidance, the program is in the very well reception column. People appreciate it. So we will start with word player and then we'll take up the topic. Om Vishwani Deva Savitar Dhuritani Parasava Yadbhadram Tanyasava Om Harinyagarbha Sambratatagri Bhutasya Yata Patireke Asit Sadadhar Prithvi Dhyamate Mam Kasmai Deva Yavisha Videma Om Ya Atmada Balada Yasya Vishwa Upasate Prashisham Yasya Deva Yasya Chaya Amritam Yasya Mrityu Kasmai Devaya Havisha Vidhena Om तूने हमें जन्म दिया
पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के दर्द हरता तू, तेरा महान तेज है फैला हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान मांगते यही दुआ, ईश्वर हमारी बुद्धि को तो श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को तो श्रेष्ठ मार्ग पर चला, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ॐ शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभृत्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोक एकैनाथं। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ॐ द्यौ शान्ति अंतरिक्षगुं शान्ति पृथ्वी शान्ति रापा शान्ति रोषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अस्तो मा सद्गमयं तमसो मा ज्योतिर्गम्यं मृत्योर्मा अमृतं गम्यम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ By the invocation of the divine mantras, which are very powerful, we are seeking the blessings of the Almighty to grant peace to this little tiny globe on which the 7.8 billion are inhabited, and a lot of bad things are happening. We are praying with devotion कि वो
प्रभु वाहेगुरु जी इस संसार में शांति लाओ, लोग आपस में प्यार करें। जय श्री कृष्ण। So much, Narinder ji. बिल्कुल आपने ठीक कहा. We really need the prayers as a lot of things are going on, and not if something good was going, then we can कह सकते हैं कि भाई अच्छी बात भी हो रही है. But अभी कुछ don't see that right now. Good morning, friends. How are all of you who joined us? As we are continuing last week's there were 4 different सेक्शंस थे जो लास्ट वीक हमने कर्म योग के बारे में बात करी थी और आज हम भक्ति योग की बात कर रहे हैं. सो निरंतर जी, आप इसके बारे में थोड़ा पहले समझाएं भी क्या है, एंड उसके बारे में देन विल टीच अस द गाइड अस फॉर दैट वन आल्सो, टीच अस दैट. आवाज नहीं. अच्छा, हाँ, आवाज आ रही है. Discussing the wisdom of Srimad Bhagavad Gita. Last session we covered the yoga of action, Karma Yoga. And let me summarize it quickly, that Karma Yoga, it depends. The intent and motive of your action will decide the quality of your action. कोई भी काम जब आप करते हो तो आपकी इंटेंट एंड मोटिव क्या है, उसके ऊपर आपके कर्म हैं. कर्म 3 तरह के हैं, तो वो 3 कैटेगरीज में जाके वो फिट होंगे जैसी आपकी थिंकिंग है और जैसा आपका मोटिव है. सो इन इंग्लिश वी आर सेइंग द इंटेंट एंड मोटिव ऑफ योर एक्शन विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ योर एक्शन. जैसे एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट, Newton's third law. And the yoga of action is the yoga of responsibility. उसमें escapism नहीं है, कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि एक्शन हम करते हैं. We initiate the action. अगर हम एक्शन ना करें तो उसमें कोई पाप पुण्य नहीं है, लेकिन जब हम एक्शन करते हैं तो उसी में सब कुछ छिपा हुआ है. And then we said that there are 3 types of your mind, the state of your mind. Sattvic state, Rajasic state, Tamasic state. So at a given time, when you initiate any action, what is the state of your mind? That will also decide कि आप कर क्या रहे हो. So if your state of mind is Sattvic, which is the litmus test is selflessness, empathetic and compassion. अगर आपका state of mind ऐसा है और उस स्टेट ऑफ माइंड में आपने कोई भी एक्शन किया है वो ईश्वर के लिए आपने किया है, ह्यूमैनिटी की अपलिफ्ट के लिए है, उसमें सेल्फिशनेस नहीं है. उसमें हम कहते हैं, जैसे हम मंत्र बोलते हैं कि सर्वत्र का भला, तो वो सर्वत्र के भले का स्टेट ऑफ माइंड जो है उसको सात्विक स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं. लेकिन बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, उसका अभ्यास करना पड़ता है with awareness, with persistence, perseverance and dedication, तब वो कहीं स्टेट ऑफ माइंड बनता है. दूसरे स्टेट ऑफ माइंड है जो आपके एक्शन को, जो भी आप कर रहे हो वो डिसाइड करेगा, वो है राजसिक स्टेट ऑफ माइंड. इस स्टेट ऑफ माइंड में हम काम तो बहुत करते हैं. 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड दे आर डूइंग एक्शंस इन दिस स्टेट ऑफ माइंड. एक्शन तो बहुत है, सारा बिजी है. किसी को पूछो कहते हैं मैं तो बहुत बिजी हूँ. लेकिन उसको एनालाइज किया जाए तो वो बिजीनेस सेल्फ सेंटर्ड है. तो उस सेल्फ सेंटर्ड स्टेट ऑफ माइंड में जो भी हम करते हैं उसमें है पाप और उसमें है पुण्य. उसी में ईर्ष्या छुपी हुई है, उसमें प्रेम छुपी हुई है. तो वो हमने ये देखना कि मैं जो कर रहा हूँ इसमें मेरी सेल्फिश मोटिव कितनी है. तो वो क्योंकि इस स्टेट ऑफ माइंड में हम बड़ी चीजें इकट्ठी करते हैं, मकान बनाते हैं, कारें लेते हैं, फैमिली एक्सटेंड हो जाती हैं, लेकिन वो सेल्फ सेंटर्ड है सब कुछ. तो इस सेल्फ सेंटर्ड स्टेट में अच्छाई भी है, बुराई भी है. तो अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा, ये इस स्टेट ऑफ माइंड में अप्लाई करता है कि आप इस स्टेट ऑफ माइंड में हो तो उसमें पाप पुण्य लगेंगे क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड है एवरीथिंग. The third state of mind is tamasic state of mind. This is the state of mind of all the rapists, all the bad guys,
these, shoplifters and dacoits, drug dealers and mafia bosses. ये उनका state of mind ये है. And killing is a state of mind. क्योंकि जो किल करते हैं वो समझते हैं कि उसने अच्छा काम किया है, क्योंकि उसका स्टेट ऑफ माइंड है, उसको पता नहीं है. तो इस स्टेट ऑफ माइंड में डिस्ट्रक्शन है, वो सृष्टि का नाश करने में लगे हुए हैं. एंड उनको ये नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि इस संसार में, इस क्रिएशन में जिसमें हम मनुष्य बने हैं, देयर आर 8.4 मिलियन एवोल्यूशंस. 84 लाख जोनियों के बाद आपको ये शरीर मिलता है, मनुष्य जीवन, राइट. तो इतनी बड़ी एवोल्यूशन आप देखो, समुद्र की लाइफ है, हजारों करोड़ों तरह की चीजें घूम रही हैं. ऐसे ही 7.8 बिलियन लोग हैं ऑन दिस प्लेनेट, कोई किसी से मिलता नहीं है, दुनिया में भीड़ हो रही है. तो ये जो एवोल्यूशंस हैं, दीज आर द एवोल्यूशंस. तो उस एवोल्यूशन में अगर हमें ये शरीर मिला है जिसमें हमें इंटेलेक्ट मिली है, द योगा ऑफ डिस्क्रिपेंसी, कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो राइट और रॉन्ग का, वो बाकियों में नहीं है. वो भोग जोनियां हैं, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, खाया पिया, मर गए, फिर बच्चे पैदा किए, सारी की सारी. सिर्फ मनुष्य जन्म में आपको ये एक प्रेफरेंस है कि दी विजडम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है. तो वो राइट रॉन्ग बाकियों को नहीं पता. तो अगर इसमें रह कर भी अगर कोई साथ तामसिक स्टेट ऑफ माइंड रखता है, टू डिस्ट्रॉय द क्रिएशन इन मैनी वेज, तो वो तो दोबारा ही और शी जो भी कर रहा है, ही विल नॉट गेट ए चांस टू बिकम ए ह्यूमन बीइंग. वो 84 लाख ही कहीं कीड़े मकोड़े बन जाएंगे जाके. तो ऐसा जिसकी सोच है, ये भगवत गीता का ज्ञान है कि भी ऐसा ना करो, ऐसा ना करो. आपको मनुष्य जन्म मिला है तो क्वालिटेटिव जिंदगी बताओ. तो आई हैव गिवन यू द बैकग्राउंड, एंड टुडे वी विल डिस्कस द योगा ऑफ डिवोशन, भक्ति योग. कि भक्ति कहते किसने? भक्ति इज ए संस्कृत वर्ड. भक्ति एक प्रोसेस, जो करेगा उसको भक्त कहते हैं, जो भक्त करता है उसको भक्ति कहते हैं. लेकिन अब पता लगना चाहिए कि भक्त क्या होता है. हु इज भक्त? भक्त मीन्स, इट्स ए संस्कृत वर्ड, जो जुड़ा हुआ. भक्त मीन जो जुड़ा हुआ है. विभक्त मीन जो नहीं जुड़ा हुआ. सो अगर जो भक्त है, भक्त किस से जुड़ा हुआ है? ईश्वर से जब जुड़ जाता है. जैसे मीरा बाई, गुरु नानक देव जी थे, राइट. संत तुकाराम थे. गुरु नानक देव जी का एक बहुत स्पष्ट दृष्टांत है कि उनके पास कितनी एलियोरमेंट आई. उनके फादर ने भी उनको कहा कि बिजनेस करो, लेकिन वो ईश्वर से जुड़े हुए थे, उनको ये अच्छा नहीं लगता था. तो जिनकी सुरती जो है ईश्वर के साथ जुड़ी हुई है, उसको कहते हैं भक्त. भक्त. मीराबाई भक्त थी. इतनी तकलीफें आई, कई कुछ किया गया, लेकिन वो ईश्वर से जुड़ी हुई थी. कबीरदास जी भक्त थे, काम तो करते थे, कॉबलर था, ही वाज ए कॉबलर बाय प्रोफेशन, लेकिन ईश्वर से जुड़े हुए हैं. तो जो भी उन्होंने कहा वो अब हम गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ते हैं, उनकी जो वाणी है गुरु कबीरदास जी की. तो वो जो जुड़ा हुआ है ईश्वर के साथ, उसको भक्त कहते हैं. बाकी भी भक्त हैं. विभक्त मीन हम चीजों से जुड़े हुए हैं. जिसका घर अच्छा है वो समझता है कि वो सोशली वेरी एडवांस है, जिसके पास पैसे हैं, राइट. सो जो इस दुनिया से जुड़ा हुआ है, जो उसने आप क्रिएट की है, क्योंकि हम खाली आ जाते हैं, खाली आ जाते हैं, सबके साथ हम क्रिएट करते हैं. तो जो इन चीजों के साथ जुड़ा हुआ है वो भी भक्त है. वो भक्त नहीं है, वो भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि चीजों से साथ जुड़ा हुआ है. उसको अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना पड़ेगा कि ये जो मैंने किंगडम क्रिएट किया है ये चला जाएगा, ये मेरे साथ जा ही नहीं सकता, किसी के साथ नहीं किया. बड़ी पावरफुल किंगडम के ऐसे के ऐसे खंडरात बन गए हुए हैं, रूइंस हैं बने हुए.
nobody lives there. अब उन्होंने होटल बना दिए हैं, कई कुछ कर दिया है, लेकिन ये जाता नहीं है साथ। तो जो इस अवेयरनेस को समझता है कि जो मेरे साथ जाएगा, क्या जाएगा, तो ईश्वर का नाम, ईश्वर के साथ जुड़कर आपने जितनी अपनी उन्नति करनी है, एडवांसमेंट करनी है, वो आपके साथ जाएगी, वो बैलेंस शीट आपके साथ आएगी। ये सारे का सारा द किंगडम ऑफ ईगोनेस, द किंगडम ऑफ आईनेस, ये यहीं का यहीं रह जाता है। इसका कोई कुछ पल्ले नहीं पड़ता। और इसमें रहकर इसमें रहकर इस अवेयरनेस को डेवलप करना कि भाई ये जो मैंने क्रिएट किया हुआ है किंगडम, ये तो चला जाना है, चला जाना है, एंड मुझे पता नहीं कब चला जाए। ये भी एक पैराडॉक्स है जिंदगी का, लाइफ का। नोबडी नोज, नोबडी नोज। हमने प्लान तो बड़े रखे हुए हैं, लेकिन आपकी डेस्टिनी का क्या प्लान है आपको कुछ पता नहीं है। हम अभी भी जा सकते हैं, 50 साल बाद भी जा सकते हैं, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो ये जो किंगडम है, इस किंगडम में भक्ति नहीं होती। अब देखो, हम मंदिर में जाते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, सारी चीजें, गुरुद्वारा में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, सिनागॉग में जाते हैं, एंड जो भी रिलीजियस प्लेसेस है अकॉर्डिंग टू देयर फेथ हम जाते हैं। हम कार बार खड़ी करते हैं, 15-20 मिनट के लिए मत्था टेका, प्रसाद लिया, थोड़ी सी सोशलाइज करके हम कार में बैठ जाते हैं, राइट। तो वो हम समझते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जी। किसी ने खाना दे दिया, खाना हम उनको दे रहे हैं जो ऑलरेडी खा के आए हुए हैं घर से, कोई भूखा नहीं है जो इन जगह पे जाता है, दे आर वेल फेड, हम उन्हीं को खाना खिला देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अगर मैंने $500 दिया है, लेट मी इन्वेस्ट इन द ऑर्फन हाउस, वो नहीं हम करते। अगर हम किसी को ऑर्डर दें, कोई एक $1,000 का जो मैंने इधर देना था, मैं ऑर्फन हाउस में दान करना चाहता, आप खाना वहां डिलीवर करो, वो कोई नहीं करता, क्योंकि उसमें किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जो आपने लेकिन जो आपने खाना दिया है मंदिर में या गुरुद्वारा में, उसमें वो कहेंगे कि भोग इनका है, राइट। वो लफ्ज सुनने के लिए तो हम ये चीजें कर रहे हैं, तो वो अपने लिए कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हम खिला भी उन्हीं को रहे हैं जो खा सकते हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, कारें हम अपने लिए खरीदते हैं, मकान हम अपने लिए बनाते हैं, हम ये नहीं पता कि जिससे आपने मकान खरीदा है वो भी यही सारी उम्र कहता रहा कि ये मकान मेरा है, अब वो बेच के चला गया। अब जो हम बैठे हुए हैं मालिक बन के, हमारे पीछे भी लाइन लगे हुए हैं। अभी आपको रियल एस्टेट के लेटर्स आने शुरू हो गए हैं, वो सारे रिसर्च करते रहते हैं कि इनकी एज कितनी हो गई है, तो आपको वो लेटर भेजते हैं कि अगर आपने बेचना है तो वी हैव ए वेरी गुड कस्टमर। तो ये तमाशा जो है, इसमें भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। तो भक्ति तभी होगी जैसे गुरु नानक देव जी ने किया था, डिटैच फ्रॉम द थिंग्स। Right. डिटैच का मतलब ये होता है कि चीजें फेंकनी नहीं है, लेकिन इस माइंड को पक्का करो कि ये मेरी नहीं है, ये चली जाएंगी। इसका हम कई तरह के जाप करते हैं, शब्द बोलते हैं, ये भी एक मंत्र, ये भी एक शब्द याद कर लेना चाहिए रात दिन कि हे प्रभु, ये जो आपने कंफर्ट दिया है ये चला जाएगा, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। तो जब ऐसे मन की स्टेट हो जाती है, तब आपका भक्ति की ओर, टुवर्ड्स भक्ति आप झुकना शुरू कर देते हो। तो दिस स्टेट ऑफ माइंड, इसको कहते हैं भक्ति। फिर आप जुड़ जाते हो, फिर आप रहते तो इन्हीं मकानों में हो, हम कोई चीज नहीं फेंकेंगे। इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश डिटैचमेंट इन अटैचमेंट। कि जो जो अटैचमेंट आपने क्रिएट किया है, उसमें आपको अवेयरनेस आ गई है। नो यू आर प्रैक्टिसिंग द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट इन अटैचमेंट। तो उस स्टेट ऑफ माइंड में आप ईश्वर के लिए बहुत सारे काम करोगे। बाकी हम सब अपने लिए कर रहे हैं, जितनी देर हम अपने लिए करते हैं उसमें भक्ति नहीं है। जब हम ईश्वर के लिए करेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, अगर मैं खाना जो $1000 का इन जगहों पे देता हूँ,
अगर मैं उधर इन्वेस्ट करूं जहां लोग भूखे हैं, रियल भूखे हैं, और वहां मैं जाऊं, अपने हाथ से दे दूं, वो जो है उसको दान कहते हैं। उसको दान कहते हैं। आपकी सुरती बदल गई है कि भाई ये दुख तकलीफ तो इन लोगों को है, और जिनको मैं देता हूँ वो तो घर से गा के आते हैं। तो ये जो अवेयरनेस है, किसी चीज को हमने फेंकना नहीं है, लेकिन उसमें डिटैचमेंट क्रिएट करनी है। सो टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट इन अटैचमेंट इज आल्सो ए प्रोसेस गोइंग टुवर्ड्स भक्ति। आप ईश्वर की तरफ जुड़ना शुरू हो जाते हो इन ड्यू कोर्स, राइट। सो भक्ति के जो अब लक्षण है, देयर आर लिटमस टेस्ट कि ये जो बंदा जो कुछ भी कर रहा है, ये भक्त है कि नहीं है। ये भगवत गीता का ज्ञान है कि किसी को टेस्ट करना है, कोई इसमें सीक्रेट नहीं है। उन्होंने 39 क्वालिटीज बताई है कि ये 39 क्वालिटीज में से एक भी क्वालिटी आप किसी बंदे में देखो कि ये कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो वो भक्त है, अगर नहीं कर रहा तो वो भक्त नहीं है, वो कुछ और कर रहा है। वो भी भक्त है, चीजों से जुड़ा हुआ है, ईश्वर से नहीं जुड़ा हुआ। तो वो जो 39 क्वालिटीज है ये भक्ति योग में, वो इट इज ए मार्वलस नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल विजडम, अपने आप के लिए भी, लोगों के लिए भी, सबके लिए। और वो ये है, मैं पहले संस्कृत में बोलता हूँ, फिर मैं आपको, इट टेक्स 2 मिनट। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रिया करुणा एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखाक्षमी संतुष्टा सततन योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मय्यर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्ता स मे प्रिय यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो या सच मे प्रिय अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारम परित्यागी यो मद भक्ता स मे प्रिय यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभा शुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय समा शत्रौ च मित्रे च तथा माना अपमान्यो शीतो शन सुख दुखेषु समा संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेता स्थिरमतिर भक्तिमान्य प्रियो। तो ये 39 क्वालिटीज है कि वो उन्होंने कहा कि भाई इसमें आप किसी भी एक क्वालिटी को आप डेवलप करो और उसकी प्रैक्टिस करो तो आप भक्त बन जाओगे। तो पहला जो है अद्वेष्टा सर्वभूतानां, गुडविल टू एवरीबॉडी एंड इल विल टू नन। ये अब सीधी बात है, इंग्लिश में कही जा रही है कि गुडविल टू एवरीबॉडी इल विल टू वन। अब आप हम सब ने, वी आर द ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर्स। एक्सटर्नल ऑडिट तो हम कर देते हैं लोगों का, इंटरनल ऑडिट कोई नहीं कर सकता। तो दिस इज द विजडम ऑफ इंटरनल ऑडिट कि आप करो, अपने आप को देखो कि डू आई प्रैक्टिस दिस आर्ट, गुडविल टू एवरीबॉडी इल विल टू नन। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है बिना, वो तो हम कर देते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड डे, लव यू, लाइक यू, बहुत सारी चीजें हम करते हैं, लोगों को प्रेज करते हैं। ये तो हम, इसका तो हमें पता है, लेकिन इल विल टू नन उसकी प्रैक्टिस नहीं है। तो 50% तो हम करते हैं, 50 जब करते हैं तो उसमें 20% का बेनिफिट आपको होता है, क्योंकि वो भी हम पूरे दिल से नहीं करते, उसमें बड़ी लिप सिंपथी होती है। जिसकी पावर है उसके आगे आगे हम झुक जाते हैं, वो गलत भी कर रहा है तो हम चुप रहते हैं। तो वो इस क्वालिटी में नहीं आता। तो इसमें ये है अद्वेष्टा सर्वभूतानां के गुडविल टू एवरीबॉडी और इल विल टू नन। तो इल विल टू नन का वो अभ्यास होना चाहिए। अगर वो अभ्यास हो जाए, होगा नहीं, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, क्योंकि जितनी भी जिसकी उम्र है उसने इसी चीज की प्रैक्टिस की हुई है कि हमने अपनी मेमोरी में जो लोगों का गंद था, जो उन्होंने गलत बातें की हमारी साथ या हमारी जिंदगी के साथ, वो हम भूले नहीं है,
वो याद वो सामने आता है या उसका थॉट आता है तो सारी की सारी मैग्नीफाई हो जाती है, क्योंकि हमने वो मेमोरी में उसको इरेज नहीं किया, डिलीट नहीं किया, क्योंकि आर्ट नहीं पता, आर्ट नहीं पता। क्योंकि अगर जैसे हमारे पास ईमेल्स आती हैं, राइट, सेल फोन में, तो एवरेज पर्सन गेट्स अबाउट 200 ईमेल्स एवरी डे। तो हम करते क्या है, जो डिलीट ओनली उसमें 2 और 3 और 4 जो है रेलेवेंट, वो आप उसको डिलीट, उसको सेव करते हो, बाकी डिलीट करते हो। कंप्यूटर के साथ तो हम कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता कि मेमोरी चली जाएगी, मेमोरी कंप्रोमाइज हो जाएगी, फिर वी विल गेट द मैसेज कि योर मेमोरी इज सैचुरेटेड बाय मोर, राइट। लेकिन ह्यूमन मेमोरी में ये मैसेज नहीं आपको आता। ईश्वर जो है, जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है, उन्होंने वो आपको मैसेज नहीं भेजते कि जी हमें मेमोरी चौक हो गई है। नहीं, वो फिर उसी मेमोरी में हम जिंदा रहते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एट द एंड ऑफ द डे, तभी वो कहते हैं कि जब दिन बीत जाए, बिफोर यू गो टू बेड, एनालाइज योरसेल्फ कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था और क्या मेरे से हो गया। तो उसमें उस टाइम, क्योंकि ताजी ताजी बात है, फ्रेश है, यू हैव द एबिलिटी एंड रिसोर्सेज टू डिलीट द नेगेटिविटी ऑफ अदर्स एंड सीमेंट द गुडनेस, क्योंकि गुण सभी में है, लेकिन हमें प्रैक्टिस नहीं है रोकने की। हम उसको, जिसको सेव करना है उसको डिलीट कर देते हैं, और जिसको डिलीट करना था उसको हमने सेव किया हो, तो उसमें भक्ति आ नहीं सकती। हम कितना भी करें, मंदिरों में जाएं, गुरुद्वारों में जाएं, मस्जिद में जाएं, सिनेगॉग में जाएं, भक्ति होगी नहीं, क्योंकि आपकी मेमोरी गलत है। आपने अपनी मेमोरी को जो सेव किया हुआ है, वो गलत चीज सेव की हुई है। The other day I gave you the example कि if my neighbor, किसी का भी नेबर आपके घर के आगे गार्बेज रख देता है, तो आप क्या करते हो? उसको अपने लिविंग रूम में थोड़ा लेते हो, हम उसको कहते हैं, या हम खुद उसको थोड़ा डिस्टेंस पे रख देते हैं, राइट। लेकिन हम अपनी मेमोरी के साथ ऐसा नहीं करते। भक्त की जो मेमोरी है कि नहीं, उसमें वैर, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी नहीं होती, तभी तो ईश्वर के लिए जगह बनती है, क्योंकि वो ईश्वर की क्वालिटीज नहीं है। इन ईश्वर की क्वालिटी के पास जाने के लिए उसमें तो कंपैशन चाहिए, उसमें तो एम्पैथी चाहिए, उसमें तो सेल्फलेसनेस स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, एटीट्यूड चाहिए। तो जितनी देर मेरे माइंड की स्थिति जो है, वो स्टेट ऑफ माइंड सात्विक नहीं है, राजसिक है या तामसिक है, जो भी मैं करता हूँ वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं, वो दिखावा है, दिखावा है। किसी ने कार अच्छी खरीद ली तो उसका भी दिखावा है, वो ये समझता है अगर मेरे मन में ये है, कार तो चाहिए, लेकिन अगर आपके मन में, किसी के मन में ये है कि कार इज मेंट फॉर नॉट प्रेस्टीज, इट इज ए ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाने के लिए कन्वीनियंस है, अगर वो स्टेट ऑफ माइंड है, तो फिर आप, जो आपकी कार है वो भी आपको अच्छी लगेगी, उसको आप रिपेयर करो, जब बदलनी है नहीं ले लो, लेकिन फिर आप एक्सपेंसिवनेस में नहीं जाओगे, क्योंकि वो दिखावा है, वो हम लोगों को इम्प्रेस करते हैं और फिर दिखाते भी हैं, जानबूझ कर दिखाते हैं। तो वो उस स्टेट ऑफ माइंड में भक्ति नहीं हो सकती, देयर इज नो भक्ति इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। सो दिस इज व्हाट द विजडम ऑफ भगवत गीता है कि भक्ति क्या होती है, भक्ति किसको कहते हैं। भक्ति है द इंडिविजुअल हु इज steadfast and attached to the selflessness mode of mind। उसमें कंपैशन जितनी देर नहीं आएगा वो भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो नहीं तो डिस्क्रिमिनेट करता रहेगा, अपनों के लिए तो सब कुछ करेगा, दूसरों के लिए नहीं कुछ करेगा, अपने लिए सब कुछ करेगा। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, उसको ये चीज समझा दी जाए, आई गो टू स्कूल्स, हाई स्कूल्स, and they appreciate this, what I am sharing you with, as a student, senior students,
मैंने उनको कहा कि इफ यू क्रिएट अ स्टेट ऑफ माइंड कि the next student who is sitting with you, if he or she is weak, eh, and your grades are good, you are getting B plus or A, उसको C मिलती है या C माइनस मिलता है। अगर जब आपके मन में ये आ गया कि I have to help and bring him or her up to my level, then you are the gem. जितनी हाँ, किसी की बांह पकड़कर टांग खींचने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन किसी की बाजू पकड़कर हाथ पकड़कर उसको ऊपर ले आना, उसको भक्ति कहते हैं। भक्त लोग ऐसा करते हैं, भक्त लोग ऐसा करते हैं। वो जो ऐसे शब्द बोलते हैं, उनकी वाणी में इतनी पवित्रता आ जाती है भक्त की कि वो सोसाइटी का भला करते हैं। सोसाइटी, आप देखो कबीरदास जी की वाणी है, हम कहते भी हैं, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जो करनगे सो परनगे, तू क्यों भय उदास। कि जो बुरे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, जो लिटरल मीनिंग ये है कि ये जो कसाई लोग होते हैं जो बकरों को काटते हैं, उसकी झोंपड़ी जो है, उसका जो घर है उनके पास है, तो वो अपने आप को कह रहा है कि कबीरदास जी आप क्यों बुरी करते, काट तो वो रहे हैं, वही भुगतेंगे, राइट। तो वाई आर यू सैड। सो कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जो करनगे सो परनगे, तू क्यों भय उदास। तो आपकी थिंकिंग ऐसी हो जाती है, ऐसी थिंकिंग हो जाती है, उसको कहते हैं भक्ति। क्योंकि ये जो शब्द हैं, आप इट इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ गुरु ग्रंथ साहब, कबीरदास जी की वाणी, मीरा की वाणी इंटेग्रल पार्ट है? Yeah. और जितने भी भक्त हैं वो जुड़े हुए थे ईश्वर के साथ, इसीलिए उनकी जो वाणी है उसमें स्ट्रेंथ है। कितनी भी साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने, मेडिसिन ने एडवांसमेंट कर ली है, लेकिन ये शब्द नहीं बदल सकते, ये शब्द नहीं बदल सकते। तो ये दिस इज द मिरेकल ऑफ भक्ति, कि भक्त जो जो भी कुछ करता है भक्त, वो भक्ति होती है। उसका सोना उठना जागना खाना पीना वो सब भक्ति है, क्योंकि ईश्वर के लिए कर रहा है। वो अपनी एंटिटी को उसमें मर्ज करके कर रहा है, उसको कहते हैं भक्ति। एंड दिस इज ए वेरी हाई स्टैंडर्ड। उस स्टैंडर्ड के ऊपर जाना पड़ता है। जैसे ओलंपिक में हम जाते हैं, राइट, जो बच्चे जाते हैं ओलंपिक में 4 साल के बाद होता है, राइट, 4 years दे डू प्रैक्टिस। हम तो सोते हैं, और फिर वो जो हार जीत है वो 1 सेकंड की होती है। सेकंड के भी 100th पार्ट में आप या तो जीत गए या हार गए, या फर्स्ट आ गए या सेकंड आ गए, लेकिन दैट इज नॉट द मोटिव। उस तक जाने के लिए आपको बच्चे को कितनी मेहनत करनी पड़ती। जो उसका सुपरवाइजर या कोच है, वो रात दिन उसके पीछे लगा हुआ है, वो बच्चा भी लगा हुआ है। ऐसे ही ये सृष्टि है, जो उसको समझते हैं वो ऐसे ही लगे हुए हैं कि भाई यही ठीक रास्ता है, कि मैं तो इधर उधर घूमता रहता हूँ। तो फेथ के ऊपर फिर बात आ जाती है कि फेथ में आदमी जुड़ जाते हैं। फेथ जो है कि नहीं, फेथ ये अपने आप को हम बॉक्स में बंद कर देते हैं कि हर फेथ की अपनी इंस्ट्रक्शंस है, आपकी अपनी इंस्ट्रक्शंस है। तो उस जो लोग ऐसी उनका विजन है वो बॉक्स में नहीं है, वो बॉक्स से बाहर आ जाते हैं। और ईश्वर का जो बॉक्स है उसकी मार्वलेसनेस में जीते हैं। वो सितारों की तरफ देखते हैं, गैलेक्सीज की तरफ देखते हैं, समुंदर की वैस्टनेस के ऊपर देखते हैं, होराइजन की तरफ उनकी दृष्टि होती है। और इस दुनिया में जहाँ हम रहते हैं, इतनी भीड़ भड़के में, वो देखते हैं कि इतना बड़ा कंपैशन लाना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग एक ही तरह के नहीं हैं। जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं चीजें, चाहे गवर्नमेंट करे चाहे आप करोगे तो यू आर ए जेम। गवर्नमेंट करेगी तो वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है,
लेकिन जब हम करते हैं, क्यों, हम इंडिविजुअल आते हैं, वी आर नॉट द गवर्नमेंट। तो जब हम इंडिविजुअल काम करते हैं ऐसे ऐसे जैसे गवर्नमेंट भी करती है, हम भी करें अपने लिए, तो हमारी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी, तो उसमें फिर उसको कहते हैं भक्ति की। बंदा जुड़ गया है, ईश्वर के काम कर रहा है, आपने नहीं करता। सो भक्ति की डेफिनेशन ये है। मैंने आपको 39 क्वालिटीज बताई, सिर्फ एक क्वालिटी की मैंने इन डेप्थ डिस्कशन की कि इल विल टू नन, गुड विल टू एवरीबॉडी। एंड देन दी अदर क्वालिटी जो भक्त में होनी चाहिए, यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च। कि ऐसा जो भक्त होता है उसकी ये क्वालिटी है कि वो दूसरों को एक्साइट नहीं करता। हम पंजाबी में कहते हैं कि ये बंदा ऐसा कर रहा है, राइट। मैं आई डोंट वांट टू से, लेकिन या लेकिन जो दूसरों को एक्साइट नहीं करता और दूसरे की कही हुई बात पे आप एक्साइट नहीं होता, वो भक्त है। तो ये क्वालिटी आप देखो, डिफाइन तो हमने कर दी, तो प्रैक्टिस तो मुझे करनी है, सबको अपने लेवल पे करनी है कि जो किसी को एक्साइट ना करे, ऐसा बंदा जो भक्त है वो एक्साइट नहीं करेगा, और ना उसकी कही हुई बात को रिएक्शन में आकर एक्साइट ना हो। तो जो ऐसी स्टेड फास्ट पर्सनैलिटी है, अदरवाइज पीपल विल बी कंट्रोलिंग यू। आपकी प्रेस की, मेरी प्रेस की तो मैं खुश हो गया, अब मेरा क्रिटिसिज्म आया जब 10 मिनट के बाद, अब मैं नाराज हो गया। तो बात तो ये है कि वो जो बंदा कर रहा है वो कंट्रोल कर रहा है मुझे इमोशनली, फिर नॉट फिजिकली, इमोशनली इज कंट्रोल, ही और शी इज कंट्रोलिंग मी। तो व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आई एम नॉट। भक्त तो जो है वो स्टेड फास्ट होता है कि प्रेज आई है, एंजॉय इट एंड लेट इट गो। अब क्रिटिसिज्म आया है तो लेट इट गो। अगर आपने प्रेज को होल्ड किया है, नाउ यू आर प्रैक्टिसिंग द आर्ट ऑफ होल्डिंग, तो अब क्रिटिसिज्म जब आएगा यू हैव टू होल्ड इट, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है। दैट इज व्हाट भगवत गीता की गाइडेंस है। इसमें कहानियां नहीं है, ये प्रैक्टिकल डेवलपमेंट है पर्सनैलिटी की, कैसे डेवलप करके हम बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, दूसरों को भी बना सकते हैं। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ भक्ति। तो ये भक्त की सेकंड क्वालिटी मैंने आपको बताई है कि जो प्रेज और निंदा में स्टेडफास्ट है, बैलेंस रहता है, वो भक्त है, वो जुड़ा हुआ है। थर्ड क्वालिटी एक मैं और आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, अभी टाइम है हमारे पास, कि तुल्य निंदा, जो निंदा चुगली नहीं करता। निंदा होती है, वैसे आई एम जस्ट आस्किंग आई एम आस्किंग यू आल्सो, व्हाट इज निंदा? निंदा किसको कहते हैं? निंदा आपके किसकी? आपके ख्याल से निंदा किसको कहते किसकी हैं? बुराई करनी, निंदा करनी, किसकी बुराई करनी, हाँ, राइट? ठीक है ना? लेकिन बुराई आप उसके सामने तो कर नहीं सकते, उसके पीछे ही करोगे जो करता पीछे है। कर। तो द डेफिनेशन ऑफ निंदा इज टू टॉक बैड थिंग इन द एब्सेंस ऑफ दैट इंडिविजुअल, राइट। उसके सामने तो हम कहते हैं आप बड़े अच्छे हो, हाँ, बड़े, 2 मिनट के बाद जब वो चला जाता है, ओह ये तो बंदा ऐसा है। तो ये जिसकी हैबिट है वो भक्त नहीं है। वो चाहे 1000 बार गुरुद्वारा जाए, मंदिर जाए, मत्था टेके, प्रसाद दे, कुछ भी करे, अगर उसने इस चीज की प्रैक्टिस की हुई है कि वो लोगों की निंदा उसकी एब्सेंस में करता है। कहते हैं ना, निंदा जी कहते हैं, निंदा निंदा चुगली कहते हैं ना, नाल ही दोनों वर्ड होते हैं हमेशा, इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे कहते हैं निंदा चुगली। तो मीनिंग मीनिंग सेम है, लेकिन दोनों इकट्ठे ही कहते हैं। और बिल्कुल ठीक बात है कि उनके सामने बड़े अच्छे हो, आप तो बहुत ही अच्छे हो, आप तो ये हो, तो आप तो हो, तो जब पीछे कोई मुड़ता है वापस आने के लिए, तो उसके पीछे बातें कर रहे हैं। सो दिस इज ए बिकम ए वेरी कॉमन थिंग ओवर हियर, मैं देख रही हूँ। और जो जो हु आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, राइट। वो आप कह रहे हो, वो आदमी समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा बंदा है, ये इसको बड़ा नॉलेज है, तो लोग उसके आगे पीछे भी घूमते हैं।
और बट ये है ना, ये नंदा जी, उनको पता नहीं चलता मैं क्या, द पर्सन जो ऐसा करता है ना, वो सोचता है मेरे से ऐसा कोई बंदा अच्छा है ही नहीं है, कि मैं तो बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ, और दे डोंट रियलाइज कि अब कर क्या रहे हैं वो। तो ये दिस इज व्हाट आई एम utmost humility शेयरिंग विद यू, कि जिसकी ये जिस जो इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है वो भक्त नहीं है। फिर वो मंदिर जाए, गुरुद्वारा जाए, मस्जिद जाए, क्या है? डज नॉट मैटर, क्योंकि वो प्रैक्टिस तो किसी और चीज की कर रहा है, राइट? So this should be we should desist from the temptation of this type of state of mind के निंदा चुगली। अगर आप किसी की प्रेज कर रही है तो जेनुअनली करो, फिर उसके पीछे ये ना कहो कि ये तो ऐसा है, राइट? क्योंकि जिस चीज की हम प्रैक्टिस करते हैं, ये ब्रॉड रिसर्च स्टेटमेंट आई एम मेकिंग, 6 months अगर आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हो, इट इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। Yes, आप 6 months, हाँ, 6 months. आप गूगल करो, यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन, हाउ टू मेक ए हैबिट। तो हैबिट इससे बनती है। अच्छी बात भी, अगर हम 6 months परसिस्टेंटली विद डेडिकेशन, डिवोशन के साथ प्रैक्टिस करें, वो मेरी पर्सनैलिटी का इंटेग्रल पार्ट है, वो रिफ्लेक्स होएगा मेरा, राइट? किसी का भी। और जो गलत बातों की कर रहे हैं उनकी भी पर्सनैलिटी है। पर्सनल बाहर से तो नहीं चेंज होते, लेकिन इमोशनल लेयर सारी चेंज हो गई, राइट? तो ये अब मैंने तीसरी क्वालिटी बताई है कि भक्त, वो भक्त होगा जो ऐसा नहीं कर रहा। बिल्कुल। जो कर रहा है वो भी भक्त है। वो ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की पूजा कर ही नहीं सकता, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट है। State of mind. तो तुल्य निंदा स्तुति मौनी। मौनी का मतलब होता है मौन, साइलेंट। साइलेंट साइलेंस कई तरह की है। साइलेंस बेनिफिशियल भी है, और साइलेंस कर्स भी है, ब्लेसिंग भी है, कर्स भी है। अच्छी चीज है, हो रही, हम जैसे शब्द सुनते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, सारे साइलेंट है, राइट? लेकिन जहाँ नीचे, जहाँ प्रसाद मिलता है नीचे जाओ, तो वहां कोई शांत नहीं है। वहां सारी कोई नहीं कहता कि यार शब्द बड़े अच्छे थे। वो दूसरी चीजों की ओर ध्यान है। वो लेट आया, वो आया नहीं, मैंने उधर जाना है, मैंने इधर जाना है। तो विद इन couple of minutes the emotional layer changes। तो ऐसा बंदा तो भक्ति कर ही नहीं सकता। ये कई लोग भक्त कई लोग जाते हैं, मैंने खुद देखा है, which I don't want to say, जाते ही उनको भूख लग जाती है, भाई 5 मिनट तो बैठो, जो कह रहे हैं मत्था टेक के थोड़ा बैठो तो सही। चलो चलो let's go। तो भी मेरा ये मकसद होता है, मैं जब देखो, मैं ज्यादा नहीं जाती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना ना, राइट। मैं रोज रोज नहीं भागती, रोज नहीं, बट आई प्रैक्टिस सम थिंग्स, आई एम नॉट परफेक्ट, नो, बट व्हेन आई गो देयर, मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी देर के बाद आई हूँ तो मैं थोड़ा बैठ के सुनूं बैठ के। जब बाद में चले जाएंगे नीचे, सब कुछ लंगर तो है, कोई ना जाने लगा ना आने लगा, सब कुछ मिलेगा, बट जब आए हो तो इतना तैयार हो के, ये भी जो भी है, टेक एन एफर्ट टू गो, तो थोड़ा सुनो तो सही ना बैठ कर, यू नो। दिस इज व्हाट भगवत गीता की बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि भगवान श्री कृष्ण हम सबको ये कह रहे हैं, सबको, irrespective of color, creed, faith, does not matter, as long as you are human, this is applicable। जो मैं आपको कह रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि जिसकी ये हैबिट है कि नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ द साइलेंस, तो एक मेरे सामने गलत बात हो रही है, बिल्कुल गलत बात हो रही है, और मैं चुप हूँ। तो मैं, हम पंजाबी में कहते हैं कि मैं क्यों पंगा लूँ, कि मैंने क्या लेना देना, मैंने क्या लेना देना। लेकिन मैंने किस चीज़ की प्रैक्टिस की, वहां तो मैंने कुछ नहीं किया। प्रैक्टिस मैंने किस चीज़ की कर रहा हूँ, कि जहाँ अन्याय होगा, इनजस्टिस होएगा, गलत बात हो रही होगी, मैं चुप रहूंगा, राइट? तो मेरी पर्सनैलिटी इमोशनल है तो डिफेक्टिव हो गई। ये भगत की क्वालिटी तो है ही नहीं, भक्त की क्वालिटी तो है ही नहीं। गुरु तेग बहादुर जी भी चुप रह सकते थे,
गुरु गोविंद सिंह जी भी चुप रह सकते कि मैंने क्या पंगा लेना, मैं अपने बच्चों 4 बच्चों को भी मुसीबत में डालूं, मैं भी भागता फिरूं इधर उधर, मेरे फादर को भी ऐसे इन्होंने कर दिया। अगर वो चुप रहते, अगर गुरु गोविंद सिंह चुप रहते, गुरु तेग बहादुर जी चुप रहते, तो आप देखो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाती। राइट, बिल्कुल राइट। ये क्वालिटी डेवलप करनी पड़ती है विद अवेयरनेस कि जहाँ गलत बात है, लेकिन हम जो वीकर सेक्शन होते हैं, कोई हमसे वीक है तो हम खड़े हो जाते हैं, जो हमसे थोड़ा सा पावरफुल है हम चुप रहते हैं। हम कहते हैं कि अंदर से भी कहते हैं कि मैं क्यों पंगा लूं, ये ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। तो मैं ईश्वर से तो मैं जुड़ा ही नहीं हुआ, मुझे यही नहीं पता कि डिवाइन एनर्जी जो ऐसा नहीं करने देगी। और जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी जब गए थे 50 पंडितों को छुड़ा के आए थे इन दिनों हाँ, दिवाली के टाइम, याद है? तो दैट इज एवरीबडी, सबने लाइटें रास्ते में जब लेकर आए उनको छुड़ा के आए थे बड़ी मुश्किल से, बिकॉज ही वांटेड टू गेट देम आउट। सो ही डिड दैट एंड दैट इज व्हाट ही कॉल्ड। ये तो कितनी वहाँ पे ही डिडंट हैव टू डू इट, पर किया उन्होंने, बिकॉज उनको पता था जैसे राइट गलत हो रहा है, गलत बात है। हाँ, सी चुप रहते तो वो आज भी जेल में होते। राइट। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं तो कह रही ये हूँ, तो ये बात तो बेचारे हम, कितना होता। हाँ, तो गुरु तेग बहादुर जी, हाँ गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, ये भक्त हैं कि नहीं? ये भक्त हैं। अन्याय के जहाँ गलत बात थी वो खड़े हुए। राइट। तो हम जाते तो हैं गुरुद्वारा और सब कुछ करते हैं। डू वी हैव द करेज एंड स्ट्रेंथ एंड मॉरल अवेयरनेस कि जहाँ भी गलत बात होगी मैं खड़ा होऊंगा? नहीं होते खड़े, नहीं होते। जो नहीं खड़े होते वो भक्त नहीं है। हाँ वो चाहे जितनी मर्जी वो शब्द पढ़े, वो भक्त नहीं है, क्योंकि उनमें वो क्वालिटी नहीं है। तो दिस इज व्हाट भगवत गीता इज। आई एम शेयरिंग विद यू द विजडम ऑफ भक्ति। कि भक्ति की जो भक्त है, जो जुड़ा हुआ है, उसके इमोशनल लेयर की क्वालिटी क्या होती है। तो आज ब्रॉडली स्पीकिंग आई सेड देयर आर 39, बट वी डिस्कस ओनली 4 और 5। उसमें ये था अद्वेष्टा सर्वभूताना, इल विल टू नन, गुड विल टू एवरीबॉडी। राइट। सेकंड वी सेड कि जो ना किसी को एजिटेट करता है और ना किसी के कही हुई चीज के ऊपर एजिटेट होता है, ये क्वालिटी भक्ति है। तीसरी हमने कही निंदा, हाँ कि निंदा, टू टॉक इल, this is the definition of निंदा, to talk ill about somebody who is not present, that is called निंदा, that is called निंदा। वो नहीं कर, वो क्वालिटी नहीं होनी। अगर वो क्वालिटी तो आप भक्ति नहीं कर रहे। एंड फोर्थ की हमने अभी कहा स्तुति, मौनी, मौनी मीन चुप रहना। चुप, चुप रह के भक्ति भी होती है और चुप रह के अन्याय भी होता है। गलत बात के ऊपर मैं चुप हूं तो आई एम नॉट ए भक्त, आई एम नॉट ए भक्त। तो ये मुझे क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी अंडर द गाइडेंस ऑफ श्रीमद् भगवत गीता, कि भगवान कह रहे हैं कि ऐसा करो। क्योंकि जिन्होंने सृष्टि बनाई है, अगर उनके ये रूल्स हैं, तो अगर उन रूलों को मानना चाहिए। अगर इफ आई एम वांट टू बी ए गुड एम्प्लॉय ऑफ, लेट अस से, गूगल, आई हैव टू फॉलो देयर कोड ऑफ कंडक्ट, नहीं तो मुझे निकाल देंगे वो। राइट। ऐसे ही जिस सृष्टि कुछ जिसने आपको नहीं निकालेगा। नहीं, ऐसे ही जिसने जिस सृष्टि बनाई है, उनकी जो रूल्स, उसको हम लैंग्वेज में कहते हैं धर्म। धर्म मीन्स वैल्यू सिस्टम। धर्म की दूसरी नाम जो है ना इंग्लिश में, फॉर बेटर, इट इज वैल्यू सिस्टम। तो जो उस वैल्यू को मानेगा है, वो बेटर है, वो एम्प्लॉय, वो उसको साइटेशन भी मिलेंगी, एडवांसमेंट भी होगी उसकी कॉर्पोरेशन में। राइट। जहाँ भी है, ऐसे ही सृष्टि में भी आपकी एडवांसमेंट होगी, आपको अवार्ड भी मिलेंगे कि आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो सोच है, इट इज पावर एक्सीलेंस। आप पीसफुल हो और लोगों को पीसफुल बना दोगे। तो ये भगत की क्वालिटीज हैं जो आज मैंने आपसे शेयर की हैं। 39 हैं। इन डिटेल वी डिस्कस्ड ओनली 4।
which is enough for today's session. And we will take up a part of this Bhakti Yoga, and then next session we'll talk about the Jnana Yoga, the Yoga of Wisdom, knowledge किसको कहते हैं. ये knowledge, bookish knowledge नहीं, we will talk something totally different. So अब time हो गया, I'm giving it back to you. And thank you very much for this opportunity. We discussed in detail many things. थैंक यू जी नरेंद्र जी, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर. देखो 4-5 जो अपनी चीज़ें भी बताई हैं, ऑल ऑफ देम आर वेरी. प्रैक्टिस करो तो जैसे कहते हो आप 6 महीने में परफेक्ट थोड़ा हो, परफेक्ट तो नहीं लेकिन काफ़ी उस टाइप चले जाओगे. बट यू कीप ऑन डूइंग मोर एंड मोर, एंड देन इट्स दिस अ गुड थिंग टू स्टार्ट. व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम टुडे, राइट? देयर इज नो स्पेशल डे. तो अभी आज से ही शुरू करते हैं. अगर ये सबको कमी है इस चीज़ की तो अभी से ही शुरू करते हैं. तो लेट्स ऑल थिंक अबाउट इट. एंड ऑल ऑफ यू जॉइंड अस टुडे. मैं तो यही कहती हूँ कि इतनी नॉलेज मिली है. अगर आपको किसी चीज़ की you think you need anything, then start learning it now, do it now. And I'm also very my request is अगर लेट आए हो तो आप शुरू से सुने, ताकि बिगिनिंग में से गुरु जी बता रहे हैं, नरेंद्र जी बता रहे हैं. थैंक्स शाली जी कह रहे हैं बहुत सीखा है. एंड कमलेश जी भी कह रहे हैं आपने बहुत अच्छा नॉलेज दी है हमको. सो एवरीबडी सेइंग दैट. एंड सारे यही कह रहे हैं. पर आप देखो, अगर किस चीज़ की यू गाइज फील दैट यू नीड प्रैक्टिस, गो बैक एंड लिसन अगेन. गो टू द पॉइंट्स एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर टुडे. विल सी इन 6 months में क्या होता है, फ़र्क पड़ जाएगा सब में. तो हमको सबको ही करना चाहिए. So that's what my request is. And you know, and another on the lighter note, I will say that I think Wednesday को हमारा थीम है पंजाबी गानों का. हम सारे देखो प्रोफेशनल सिंगर्स में भी ज्योति जी होंगी, शी इज़ वेरी गुड, बट वी ऑल आर सिंपल पीपल. तो हम गाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे. आशा जी भी आ रही हैं, नरेंद्र जी आ रहे हैं, मैं भी होंगी. इफ एनीबडी एल्स वांट्स टू जॉइन फॉर पंजाबी सेशन, प्लीज़ डू दैट. कभी कभी वंस इन ए वाइल वी विल स्टार्ट, विल डू हेल्प, बिकॉज सब कह रहे थे फोक सॉन्ग्स भी लेकर आओ. तो विल हैव, अगर किसने पंजाबी गाना है, किसने हरियाणी गाना है, यू नो, विल हैव दैट सेशन ऑल्सो, वो भी करेंगे हम. बट टुडे वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द पंजाबी ऑन वेडनेसडे. सो प्लीज़ ज्वाइन करना हमारे साथ, सेम टाइम सेम प्लेस. एंड एज आई सेड बिफोर, रिमाइंडर, यस, रमा जी भी कह रही हैं कि आप नरेंद्र जी बहुत अच्छा वैल्यूबल इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, और मैं कहती हूँ आप सिखाते भी हो, यू टीचर्स एंड यू नो. सो वी जस्ट हैव टू फॉलो. दैट्स लाइक यू सेड, 6 months इट्स नॉट दैट लॉन्ग. पता भी नहीं चलता, सीज़न बदल जाते हैं बड़ी जल्दी. यू नो, लाइक अभी करोगे इस फॉल, बाय द टाइम 6 months आएगा तो स्प्रिंग आ जाएगा. ठीक है कि नहीं? सो बिगिनिंग, गुड बिगिनिंग स्प्रिंग में होती हैं. सो लेट्स थिंक अबाउट इट एंड गो एंड लिसन अगेन, एंड वी ऑल कैन इम्प्रूव. That's what I feel. So thank you Vijay ji for joining today. I see you there, you're watching us. तो कभी कभी किसके नाम नज़र नहीं आते, लेकिन मुझे मालूम है काफ़ी लोग सुन रहे होते हैं, और हमारे प्रोग्राम कहीं दूर भी जाते हैं. Other countries it goes as well, and some people listen to it later on in the day, because सुबह काम कर रहे होते हैं. तो हमारा प्रोग्राम काफ़ी अच्छा चल रहा है. And I want you to all to do me a favor, please. Thank you so much Shali ji, that's so nice of you to say that. Shali ji कह रही हैं that she's pledging herself today to bring some change in her life. That's what she's saying. So that's really very nice of you Shali ji to say that. And you are also a very good person as it is. बट ऐसे कहते हैं ना कि हमको सबको थोड़ी ज़रूरत, हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है इम्प्रूव करने के लिए. दैट वी कैन ऑल डू. सो आई विल से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू टुडे, एंड हैव ए वंडरफुल डे, rest of the day, and we'll see you back here on Wednesday. Have a safe drive, safely, and pray and bring the improvement in your life, and listen to the program again, and please share this with all your friends, ताकि उनको भी थोड़ी knowledge मिले. And whenever you go, you just share it with your timeline, and more people can listen to it. So thanks a lot everyone, have a wonderful day. We'll see you back here on Wednesday. And thank you Narinder ji, Guru ji, aapko thanks for all the knowledge that you gave us today, and we are really very grateful to you. Dil Diyan Gallan is very thankful आप आए हमारे प्रोग्राम में. थैंक यू जी. तो आप जाने से पहले सबको कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ डू दैट. आवाज़ नहीं आ रही आपकी, आवाज़ नहीं आ रही. Well, thank you for affording me the opportunity to share the wisdom of Srimad Bhagavad Gita.
And my salutation to all the audience who are connected to us. I would urge them to continue to associate yourself with this program. Different type of knowledgeable people come on this, and even the singing programs are very, very delightful because professional singers and singers who understand music, and so it's a variety is there. So kindly come and enjoy and continue to support Veena-ji. And my own thanks to Veena-ji for giving me the opportunity. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Have a nice day. Thank you. And अभी मैंने अभी फोटो नहीं ली, मैं लेती हूँ अभी आपके साथ याद